आज मॉडल स्कूल में एनुअल कंपटीशन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें आज हम प्राइमरी सेशन में हैं। प्राइमरी सेक्शन में क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का एक इंग्लिश कंपटीशन, टाइपिंग कंपटीशन टेस्ट हो रहा है, जिसमें बच्चे यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि मॉडल स्कूल में एनुअल कंपटीशन हो रहे हैं और इसमें हमने अभी कंप्यूटर का इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग लिया है और अभी हम जूनियर ग्रुप में हैं। जूनियर ग्रुप में बच्चों को अभी हिंदी टाइपिंग लिया है, जिसमें इनको 10 मिनट दिए गए हैं। 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसमें 21 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं। Give us technology. With a one phone, students can attend online classes, read e-books, learn watching videos, search for information, and exploring virtual world. गुड मॉर्निंग। जैसे कि एनुअल कंपटीशन चल रहा है मॉडल स्कूल में और अभी हम जूनियर सेक्शन में खड़े हैं और यहाँ पर बच्चे अभी अपना इंग्लिश टाइपिंग दे रहे हैं, जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और अभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन में दे रहे हैं बच्चे। But the disciple did not want to leave the place. Everything that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. They are making students lazy. They are making us faster, more efficient and Smartphone makes students lazier, not smarter. Smartphones are useful. I am not saying they are bad, but the problem when students stop using the phones and start depending on them. Earlier, if we didn't understand something, we used to try harder, like asking teachers, discussing with friends, or even opening the books again. Today, the first reaction is, let me Google it. And slowly we stop thinking on our own. When answer comes so easily, but our brains stop working seriously. Another big issue is distraction. We all know this. We sit down to study for just 30 minutes with our phone nearby. One message comes, then one reel, then a video, and suddenly 1 hour is gone. After that we feel tired and say I'll study later. This habit makes us lazier, not smarter. Smartphone makes us look busy without actually doing work. Taking screenshots instead of making a note, watching short videos instead of reading a chapter, copying assignments instead of understand them. We may finish the task, but we don't really learn anything. Because of phone, students sleep late and wake up tired and feel bored even in class. Attention span becomes smarter. How can
Even 2 pages feel difficult. How can a student become smarter when they can't even focus properly? Some people say smartphone increase knowledge. Yes, they can. Yes, if they can use in limits, but unlimited use turns knowledge into entertainment, learns into laziness. So in reality, smartphones are not making students smarter. They are making us comfortable, dependent, and distracted. And comfort never creates smart minds effort does. That is why I strongly believe that smartphone makes students lazier, not smarter. Thank you. एआई का उपयोग विद्यालयों में सीमित किया जाना चाहिए। आजकल अक्सर ये देखा जाता है। मैम अच्छा तो मत बोलो। झोपड़ी बना रहा हूँ मजाक से। झोपड़ी का दरवाजा अच्छा डिजाइन करता हूँ मैं। यूँ करूँ। मजाक से उनमें से एक महत्वपूर्ण था। वहीं आज तकनीक के बदलते दौर ने ऑनलाइन शिक्षा को भी गति प्रदान की है। पहले मैं पारंपरिक शिक्षा पर बात करूंगा। पारंपरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रणाली है जिसमें छात्र और शिक्षक एक ही कक्षा में बैठते हैं, छात्र पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच लगाव बढ़ता है। विद्यार्थी शिक्षक से कोई भी प्रश्न बाधित व्यक्ति ब्रेल सीखना चाहे तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उसे ब्रेल नहीं सिखाई जा सकती। अतः समावेशी शिक्षा की अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू कर पाने में ऑनलाइन शिक्षा असमर्थ रही है। बात यह नहीं है कि कौन सी प्रणाली बेहतर है, बात यह है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें एक बेहतर भविष्य की ओर जाना है। हमें जहाँ शिक्षण और पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों को बचाए रखना है, सामाजिकता का हमें ध्यान रखना है, इसके मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा में उपस्थित इंटरनेट के माध्यम से, असीमित संसाधनों के माध्यम से हमें और विषय वस्तुओं के बारे में सीखने का प्रयास करना है। भविष्य मिश्रित शिक्षा का है, ना पूरी तरीके से ऑनलाइन ना पूरी तरीके से पारंपरिक। तो हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान के प्रकाश को संजोना है और एक बेहतर नागरिक बनके अपने देश के कल्याण में रत रहना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। आज जिसके वह योग्य है, पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक अपने सानिध्य में एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण उसी प्रकार करता है जैसे किसान अपनी फसल का। लेकिन कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। पारंपरिक शिक्षा जहां एक ओर विद्यार्थी के चरित्र और व्यक्तित्व को उज्जवल बनाती है, वहीं इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी भौगोलिक और आर्थिक सीमाएं हैं। आज भारत जैसे विशाल देश में लाखों मेधावी छात्र सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास बड़े शहरों और विद्यालयों तक पहुंचने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। परंतु महोदय, हमें समय की इस पश्चात को भी समझना होगा। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कभी कहा था कि जो जीव परिवर्तन के अनुरूप खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यह नियम शिक्षा पर भी लागू होता है। आज ऑनलाइन शिक्षा ने ज्ञान को राजमहलों से निकालकर जन जन तक पहुंचाया है। और तो और उस शिक्षा का एक महत्व होता था। आजकल जितनी सुगमता से शिक्षा उपलब्ध है, उतनी ही सुगमता से उसका जो महत्व है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण लाभ भी हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, उन लोगों को ऑनलाइन शिक्षा ने एक साधन दिया
कि वो अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रख सकें। इग्नू, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और NIUS जैसे विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त बोर्ड हमें ये मौका देते हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा को साथ में जारी रख सकते हैं। यदि कोई जॉब कर रहा है, यदि कोई हाउसवाइफ है या किसी भी कारण से उनकी शिक्षा में अवधान आ चुका है, तो उसको साथ में कंटिन्यू कर हम लोग कर सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा के भी अपने बहुत लाभ हैं, जैसे मौलिकता और नैतिकता का भाव, और जो विद्यार्थी और शिक्षक का आपसी संवाद होता है, विद्यार्थी का चेहरा देख के ही शिक्षक समझ जाता है कि इसका डाउट है। तो ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिसके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा एक साधन है और हमें जहाँ से बेहतर शिक्षा मिले हमें निश्चित रूप से उसको चुनाव करना चाहिए, ना कि शिक्षा के विकल्पों को ही तलाशते रहें। हम लोग 2x की स्पीड कर लेते हैं ऑनलाइन में, पर ऐसा कोई रिमोट नहीं है जिससे शिक्षक का स्पीड को कम करा जा सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गालिब हमेशा देखते रहे कि हमारे चेहरे पे धूल है, पर उस धूल को हटाने का उन्होंने विचार ही नहीं किया। आप सभी का मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुवन में हरी मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। And online news audience. I am Parathlete Pradeep Sharma from class 12. The title of my song Chutki Jagah. Chutki Jagah.